वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन फ्यूल। देखो, यूज ऑफ द ग्रीन फ्यूल लीड टू रिडक्शन इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। एकदम बात सही है। एथेनॉल इज फेमस फॉर एल्कोहल। इट इज नोन एज द एन इथाइल एल्कोहल। याद रखिए, इथाइल एल्कोहल। एथेनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी sugary substance like sugar cane sugar, glucose, saltpeter, mahua's flower or starch. Ethanol is obtained by fermentation of pine, karanja, पोंगा पोंगामिया पिनाटा जिसको बोलते हैं, फर्न। ये एग्जाम में आ चुके हैं सादे नाम। दीज आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ग्रीन फ्यूल्स। It is noteworthy that bioethanol can be obtained from sugarcane crops. This can be used to obtain energy in the form of fuel. Microbiological fuel cell (MFC) can convert the available chemical energy present in organic substance directly into the electrical energy. ये याद रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजिकल फ्यूल सेल ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर यूज्ड as a catalyst in the conversion of the substance into an electron. For purification of the wastewater, use of the microbiological fuel cells not only optimize the cost of the purification, but it is an attractive option for the production of the electricity. In microbiological fuel cell, primarily carbon substance like glucose, sucrose, cellulose, starch, format, acetate, ethanol, methanol, amino acid, protein are used in the form of the substrate. Also, some inorganic substance like sulfides are used in the form of substrates. The high level of the expertise is required for the production and engineering of these fuels, as well as knowledge and experience are required for higher production and innovation. It is difficult to produce such type of the fuel in developing countries. ये टफ है, इसीलिए तो सारी डेवलपिंग कंट्रीज यही प्रोड्यूस कर लें और गल्फ कंट्रीज से कोई खरीदे ही ना फ्यूल्स, fossil fuel, because it requires heavy capital investment apart from the establishing facilities for large scale production. Ecology and society can be adversely affected. अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, नॉइसलेस होता है, हाई एफिशिएंसी होता है, इजी डिजाइन एंड मेजरमेंट ऑफ द सेल, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, बायोस्फाल्ट ये देख लेते हैं, एग्जाम में आ चुका है बायोस्फाल्ट के बारे में। इज ए सब्सटीट्यूट टू एसफॉल्ट विच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द नॉन पेट्रोलियम based renewable sources. In these sources, sugar, molasses, paddy, maize, lignin, cellulose, waste of palm oil, waste of the white mustard oil are included. अब देन नॉन पेट्रोलियम बेस्ड तार, इसको एस्फाल्ट जिसको बोलते हैं, नॉन पेट्रोलियम बेस्ड तार को एस्फाल्ट बोलते हैं, दैट इज एस्फाल्ट। इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द रोड्स, हैंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द रोड फ्रॉम बायोस्फाल्ट इज eco-favorable. A fuel cell is electrochemical cell that converts chemical energy from a fuel to electricity. ये याद रखिएगा, फ्यूल सेल ये करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है थ्रू ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। ओके, देन स्टेशनरी फ्यूल सेल आर यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल पर्पज एंड बैकअप पावर जनरेशन. फ्यूल सेल generate direct current. Okay, it is noteworthy that when hydrogen burns in the air, then it combines with oxygen to produce water. This process is called combustion, and in this process huge amount of the energy is released. Hydrogen gas is considered to be a pollution less extremely good fuel due to its highest calorific value. Hydrogen is produced by the temperature differentiation, photosynthesis, electrical reduction of the water. ये दो तीन तरीके बताए हैं. In order to accelerate the development and utilization of the hydrogen energy in the country, National Hydrogen Board was set up in 2003. अब तो कई सारे मिशन आ गए हैं, तो वो तो पुराना हो गया. Up to 2020, it targets to set up 1000 megawatt hydrogen based power generation capacity. Hydrogen gas is called as the future fuel. ओके, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. बाकी ये तो डेटा चेंज होता रहता है, इसको आप याद मत रखिएगा फिलहाल. अब क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट कैन बी मतलब करेक्ट. कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बशन. इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हीट आर पावर जनरेशन. बिल्कुल सही.
इट कैन बी, अगेन कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। देखो ये सारी चीज फ्यूचर में क्या हो सकता है नहीं पता, तो चीज सही है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल द थ्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स क्रिएट द लीस्ट पॉल्यूशन, लीस्ट पॉल्यूशन कौन सा इसमें कर सकता है, हाइड्रोजन। बाकी ये सारे क्वेश्चन को करेंगे ज़्यादा, ये देखो मल्टीपल टाइम्स 4 बार एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देन विच आर द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लीस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कौन सा, हाइड्रोजन। विच आर द फॉलोइंग फ्यूल्स वुड प्रोड्यूस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मिनिमम कौन सा, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के बेस पे 4-5 बार वहाँ 2 बार यहाँ, तो मतलब लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ द ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल किसको बोलते हैं, एक्चुअली एथेनॉल को ग्रीन यहाँ पर दिया गया, एथेनॉल आल्सो नोन एज द एथाइल यूज्ड एज द ग्रीन फ्यूल, तो बट यहाँ पे ऑप्शन ऐसा डायरेक्टली कोई है नहीं, ठीक है। पाइन, करंजा, फर्न, ये सारे इससे बनते हैं ना, एथेनॉल इज यूज्ड आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ पाइन, या तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता तब तो इसको हम लगा सकते थे, बाकी सिंगल को नहीं लगा सकते आप। ओके, कंसर्निंग फ्यूल्स सेल in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following। बेसिक से स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज द फ्यूल सेल एमिट हीट एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट, एकदम बात सही है, ये करता है, मतलब हीट एंड वाटर, ये देखो इसी से बेस ना क्वेश्चन 2024-25 में भी रिपीट हुआ IAS में, तो PYQ भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है UPSC में भी, बाकी स्टेट PCS तो डायरेक्टली पूछता है PYQs। फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, नहीं नॉट फॉर ये लगा दिया ना, यही गलत कर दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट था एंड के बाद ये स्मॉल डिवाइसेस लाइक दिस, ये गलत स्टेटमेंट है। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट करंट, नहीं वो एक्चुअली DC के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है, ओनली वन। ओके, अगला, माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी, वाई, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सर्टेन सब्सटेंस, सही है। दे यूज ए वैरायटी ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट्स, नहीं ये गलत है। ओके, ये चीज़ गलत है, इनऑर्गेनिक ने ऑर्गेनिक, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ये देखिए, कन्वर्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इनऑर्गेनिक गलत है। दे कैन बी, तो सेकंड गलत है। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लींस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, 1-3 इसका करेक्ट है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट इज आर लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्या देखो बेसिक साइंस में दिक्कतें बतानी, क्या दिक्कत वैसे आपको आ रही है इस चीज़ से, ठीक है। जैसे प्रमोशन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली, ओनली आ गया, गलत काट दो इसको, नॉट ऑन द ओनली सीज, नॉट, वही कंटिनेंट पे क्यों नहीं कर सकते, वही चीज़ कंटिनेंट पे लाके कर लो, तो यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, नॉट ओनली सब नहीं रहेगा। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए हाई लेवल ऑफ द एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, एकदम बात सही है। इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटीज द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न, एकदम बात सही है, इसका 2 और 3 करेक्ट है। ओके, इन द यूनियन बजट 2011-12, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अब तो मुश्किल ऐसा ना, इफ मतलब इस टाइप का जो नए बजट में अनाउंस है उसके बेस पे आ सकता है, करंट का क्वेश्चन आएगा ये सारा। A full exemption from the basic customs duty was extended to bio-based asphalt या बायोस्फाल्ट। What is the importance of this material? देखो इसमें देखते हैं, unlike traditional asphalt, biosphalt is not based on the bio fossil fuel, सही बात है। Biosphalt can be made from non-renewable sources, नहीं ये चीज़ गलत है, रिन्यूअल सोर्सेज से बनाए, नॉन रिन्यूअल से बनाया हुआ तो फिर फ़ायदा क्या है इस यूज करने का, भाई हमें नॉन रिन्यूअल से शिफ्ट होकर रिन्यूअल पे आना है ना, तो ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया, भी लगने के बाद भी इसका ड्रॉबैक है, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत है। बायोस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम द नॉन ऑर्गेनिक, हाँ ठीक है, मटेरियल कैन बी नॉन ऑर्गेनिक। इट इज़ इको फ्रेंडली टू यूज बायोस्फाल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स, एकदम सही बात है, उसका टेम्परेचर वगैरह रिड्यूस करने के लिए होता है यूज, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 3, 4, 2 स्टेटमेंट गलत है। ओके,
अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सा? सिक्किम। ये काफ़ी पुरानी न्यूज है और इम्पोर्टेंट भी है फर्स्ट, क्योंकि वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड। इसमें सिक्किम है इंडिया का। अगेन 3 ने पूछा यूपीपीसीएस ने। अगला क्वेश्चन, with reference to organic farming in India, consider the following statement. The National Program for Organic Production (NPOP) is operated under the guidelines and direction of the Union Ministry of the Rural Development. The Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APIDA) functions as the secretariat for the implementation of the NPOP. ठीक है, देखो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, ये मिनिस्ट्री गलत है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर तो मिनिस्ट्री गलत देती है, मिनिस्ट्री गलत है। ओके, बट ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये तो मिनिस्ट्री गलत थी, इसलिए रूरल नहीं थी उसमें। बाकी दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ये भी बात सही थी। तो 2-3 सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मिसलिनियस, इससे देख लेते हैं थोड़ा बहुत। प्राइमरी फॉर्म ऑफ द बायोगैस आर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। देन जियोथर्मल एनर्जी इज नेचुरल हीट ऑफ द अर्थ। ओके, in India, source of the geothermal energy is found primarily in Himalaya, Khambat Basin, Sonata. Sonata मतलब सोन नर्मदा तापी, सोनाटा, वेस्टर्न घाट, गोदावरी बेसिन एंड महानदी बेसिन, याद रखिएगा। Diu is the first union territory of the India to the 100% of the solar energy. In the union territory, solar plant had been installed over more than 50 acres of the land in 2018. Okay. तो ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं, बट 100% ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर प्रेजेंट इन कोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो सल्फर और नाइट्रोजन इनके कंपोनेंट होते हैं एसिड रेन में। सिक्किम इज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अंडर द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट दैट हैव टू बी स्टडीज एंड रिजॉल्व आर। कौन सारे हैं इसमें? रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ द एयर एंड सॉइल वाटर, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, ऑल ऑफ द अबव। ओके, एसेंशियल रीजन है। कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, ये तो मतलब लगभग बात सही है। ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स, देखो ये बात सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो इसमें नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। IAS 2003 का क्वेश्चन। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द ऑफ इंडिया जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेस हैव नॉट बीन फाउंड। कहानी देखो, अभी हमने जो देखा था उसमें हमने गंगा डेल्टा नहीं देखा, गंगा वाला बेसिन नहीं देखा था, बाकी सारे देखे थे। जियोथर्मल एनर्जी नेचुरल हीट ऑफ द अर्थ, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले। बाकी यहाँ पर दे रखा है हिमालय, सोहना, वेस्टर्न घाट, खंबात, सोन नर्मदा तापी, इसको सोनाटा बोलते हैं, गोदावरी, महानदी, ये सारे हैं। मतलब नॉर्थ इंडिया वाली रिवर्स मोस्टली नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कॉलम मैच करना है आपको। ये उतना मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स का एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म हो सकते हैं। देन उसके बाद सोलर एनर्जी इन एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बायोगैस का है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मेन कंपोनेंट है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल में दिक्कत आएगी। ओके, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? देखो कन्वेंशनल यहाँ पे सोलर भी है और विंड भी है, तो यहाँ 2 हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल आपका कोल है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी और कन्वेंशनल। एक्चुअली यहाँ पे कोल है, बट इन एग्जाम वालों ने न्यूक्लियर को भी नॉन कन्वेंशनल मान देंगे, बट ये कन्वेंशनल है। ओके, तो कोल फिलहाल कन्वेंशनल है और यहाँ कोल लगा सकते हैं आप, ठीक। वैसे सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, बट इन्होंने इसको डिस्प्यूटेड किया क्योंकि 2 ऑप्शन थे ना। ओके, तो यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होता है।